Welcome students. Today we are going to discuss miscellaneous exercise on chapter 5 from question 12 onwards. Question 11 तक पहले के वीडियो में हम किए थे. तो question 12 is find dy by dx if y is 12 1 minus cos t, x is 10 t minus sin t where t is between minus pi by 2 to pi by 2 open interval. So first of all we'll write y. Remember it is a parametric form. So y is a function of t, y is in term of parameter t. So we'll find dy by dt and 12 is constant. Remember we are differentiating with t. 1 का derivative is 0 minus cos t का minus sin t, तो minus cos t का derivative plus sin t. And x is 10 into t minus sin t. So dx by dt, x is in terms of parameter t, so dx by dt 10 t का 1 sin t का cos t. Therefore we can say dy by dx in parametric form. We find dy by dx by finding first dy by dt. First we differentiate y with respect to whatever is parameter, here it is t. फिर हम x का derivative with respect to parameter निकालते हैं, it is t here. Then we divide. So 12 sin t upon 10 1 minus cos t. Now 12 by 10 is 6 by 5 into sin t upon 1 minus cos t. Now you can leave it here, but it is better if you simplify by applying half angle formula. So this implies dy by dx. Remember children, 6 by 5 sin t half angle formula is 2 sin t by t by 2 cos t by 2. Sin 2 theta होता है ना फॉर्मूला, 2 sin theta cos theta. तो यहाँ जो भी एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है, तो t का हाफ हो जाएगा t by 2, तो 2 sin t by 2 cos t by 2. Then 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta, means 2 theta का half theta, तो t का half t by 2, so it will become 2 sin square t by 2. Now 2 will cancel, 1 sin t by 2 will cancel, cos t by 2 sin t by 2 cot t. So we are getting dy by dx is equal to 6 by 5 times cot t by 2. Question number 13. Find dy by dx if y is sin inverse x plus sin inverse root 1 minus x square, x is between minus 1 to 1. तो ये जो दिया हुआ ना -1 to 1, ये डोमेन के लिए दिया हुआ, अदरवाइज ये फंक्शन डिफाइंड नहीं हो. तो y is sin inverse x plus sin inverse रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, तब हमें इतना नहीं लिखना होगा, तब हम सीधा इसका आंसर लिखेंगे. So this implies y is equal to sin inverse x, and remember children, sin inverse root 1 minus x square. Sin inverse root 1 minus x square ये होता है cos inverse. अब इसे ट्रायंगल बना के भी कर सकते हो और सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो इट विल बिकम cos इनवर्स x. क्योंकि एमसीक्यू करने तो हम हर चीज को प्रूफ नहीं कर पाएंगे. तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाई 2 हो गया, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0. देयरफॉर dy by dx is, so 0 is the answer for this question. Question number 14. If x square root of 1 plus y square root of 1 plus x equal to 0 and x is between minus 1 to 1, we are supposed to prove dy by dx is minus 1 upon 1 plus x square. So let us write whatever is given. तो पहले इसको हम रीराइट करेंगे जो भी हमें गिवन है. Now if you proceed in the traditional way कि आप दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दें, then what will happen? You will be able to find dy by dx.
लेकिन जरूरी नहीं है वो इस फॉर्म में आए, तो प्रूव करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं। सो विल टेक ज़ीरो का एडवांटेज ऑन RHS। तो हमारे पास यहाँ 2 रूट है और हमने देखा RHS में 0 है, तो वाई नॉट शिफ्ट वन टर्म टू दैट साइड बिफोर फाइंडिंग द डेरिवेटिव। हम डेरिवेटिव निकालने से पहले तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और जो आंसर भी सजेस्ट कर रहा है dy बाई डी एक्स की टर्म में, यानी कि ये एक्सप्लिसिट फंक्शन यानी कि y इक्वल टू एफ ऑफ x बनाया जा सकता है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई और माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 प्लस। नाउ यू कैन ओपन द ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। नाउ यू कैन bring all terms to LHS and write like terms x square minus y square, ये थोड़ा एक जैसे लग रहे हैं देखने में, x square y minus एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टराइजेशन a माइनस बी मीन्स एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई फॉर्मूला है, और यहां से एक्स वाई कॉमन आ गया, विल गेट एक्स माइनस वाई। नाउ आप फंक्शन को ध्यान से देखिए, ये x इक्वल टू वाई तो नहीं है, x इक्वल टू वाई। अब क्योंकि मुझे इसे डिवाइड करना है x माइनस वाई से, तो मैं तभी डिवाइड कर पाऊंगा जब x इक्वल टू वाई ना हो, यानी कि y इक्वल टू एक्स ना हो। y इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो है नहीं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बड़े सेफली एज y इज नॉट इक्वल टू एक्स, देयरफॉर डिवाइड बाय। तो जब भी हम डिवाइड करते हैं ना, मेक श्योर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो 0 ना हो, देयरफॉर डिवाइड बाय x माइनस वाई। तो वी गेट, so let us see what we get, x plus y प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब y की 2 टर्म है, y कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस एक्स। अब y आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ x, y इज माइनस एक्स, और ये फिर 1 प्लस एक्स उसी के नीचे आ जाएगा, इतना अलजेब्रा तो आप लगा ही लेंगे। नाउ वी कैन राइट dy बाई डी एक्स बाई कोशेंट रूल। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो अंडरस्टूड ही है। तो dy बाई डी एक्स माइनस को ओवरऑल से बाहर रहने दीजिए, कोशेंट रूल लगाइए आप x अपॉन 1 प्लस एक्स पे। तो रूल सेज कि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1। 1 को लिखो या ना लिखो एक ही बात है, मैंने दिखाने के लिए लिख दिया है कि हाँ ये डेरिवेटिव से है। देन न्यूमरेटर एज इट इज x, 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1। So now we will write the final step dy by dx. You simplify the denominator 1 plus x minus x. तो 1 बचेगा बाहर, माइनस है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव, हेंस प्रूव। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आ सके। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन होती है, रेडियस ए जी, सेंटर ए बी। फॉर सम सी ग्रेटर देन 0 प्रूव दैट दिस क्वांटिटी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। दिस क्वांटिटी वी हैव टू शो इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। यानी कि जब हम इस क्वांटिटी की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर में ए और बी नहीं आएगा। तो लेट अस फर्स्ट राइट द गिवन इक्वेशन। अब ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट मैं नहीं कहूँगा, टिपिकल है। टिपिकल इन दिस सेंस, अगर हम इसको सीधा डिफरेंशिएट करेंगे और सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हर कर्व की एक पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है, जैसे अभी पैरामेट्रिक फॉर्म पीछे पड़ी है, तो उसमें से पैरामीटर को रिमूव करके हम कुछ केसेस में कर्व की इक्वेशन बना सकते हैं। ऐसी कर्व की इक्वेशन को पैरामेट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सर्कल की पैरामेट्रिक फॉर्म जो है ये बनेगी, पैरामेट्रिक इक्वेशंस आर
जो हमारा सर्कल होता है ना एक्स माइनस ए एक्स माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सेंटर एच के रेडियस आर, इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म बनती है एक्स माइनस एच इज आर कॉस थीटा, वाई माइनस के इज आर साइन थीटा। तो यहाँ पे एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए इज सी कॉस थीटा, वाई माइनस बी इज सी साइन थीटा। अब हम इसको स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे ना, तो एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सी स्क्वायर कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म हो गई सर्कल की। और एक्स इज ए प्लस सी कॉस थीटा एंड वाई इज बी प्लस सी साइन थीटा। इससे ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो आप इसे नॉर्मल तरीके से करेंगे तो अटक जाएंगे। दिस इम्प्लाइज डी एक्स बाई डी थीटा इज सी साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन एंड डी वाई बाई डी थीटा is c cos theta. Now divide these two, dy by dx is, we have discussed so many times, dy by d theta upon dx by d theta. So c cos theta upon minus sin theta. So this implies dy by dx is equal to minus cot theta. तो देखो ये कितना सिंपल टर्म में आ गया डेरिवेटिव। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो पैरामेट्रिक में सेकंड डेरिवेटिव ऐसा नहीं होता कि आपने डी स्क्वायर वाई बाई डी थीटा स्क्वायर निकाल दिया और फिर डी स्क्वायर एक्स बाई डी थीटा स्क्वायर निकाल दिया और डिवाइड कर दिया। नाउ दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई विल राइट इन डिफरेंट कलर। एंड नाउ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो क्या मीनिंग बताया था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का? इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। मीन्स वी हैव टू फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया? माइनस कॉट थीटा। तो कॉट का माइनस में होता है तो माइनस कॉट का प्लस कॉट सेक स्क्वायर हो जाएगा थीटा। बट थीटा है ना, और हम एक्स के विद रिस्पेक्ट ले रहे हैं। तो जब थीटा का मैंने थीटा के विद रिस्पेक्ट लिया था तो इनटू नहीं करा था। अब थीटा को हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो हमारे पास आएगा डी थीटा बाई डी। अब देखिए डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से निकलेगी आपकी, डी एक्स बाई डी थीटा का रेसिप्रोकल ले लो, डी थीटा बाई डी एक्स आ जाएगा। तो माइनस 1 बाई सी साइन थीटा, माइनस 1 बाई सी साइन थीटा। देयरफॉर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज कॉस सेक स्क्वायर थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा माइनस सी साइन थीटा है तो डी थीटा बाई डी एक्स उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1 अपॉन माइनस सी साइन थीटा लिखो या माइनस को आप ऊपर भी। तो दिस implies डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज माइनस कॉसेक क्यूब थीटा बाई सी, क्योंकि साइन का जो ऊपर जाके कॉसेक हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं, हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, एक एक्सप्रेशन गिवन था उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो नाउ वी हैव टू फाइंड दिस एक्सप्रेशन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल रेज टू पावर 3 by 2 and divided by second derivative. This we are supposed to show it is independent of a and b. तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स आया था हमारे पास, देखिए क्या आया था? माइनस कॉट थीटा। तो विल पुट माइनस कॉट थीटा प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर तो कॉट स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा, रेज टू पावर 3 by 2 एंड दिस वी आर गेटिंग minus cosec cube theta by c. Second derivative is minus cosec cube theta by c. So what I will do, 1 plus cot square is cosec square. So cosec square theta by 3 by 2 raised to power 3 by 2
minus c you shift upon the numerator and cosec cube theta. Now this will be square and 2 पावर विल ये 2 और 3/2 तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 इंटू 3/2 2 कैंसिल हो जाएगा इट विल बी माइनस सी cosec cube theta. So cosec cube theta is here also. So we are getting minus c which is independent of a and b. तो इसमें हमें यही शो करना था कि a और b से इंडिपेंडेंट है. तो मैं फिर बता रहा हूँ अगर आप इसमें सीधा dy बाई डी एक्स और सेकेंड डेरिवेटिव ट्रेडिशनल तरीके से निकालेंगे तो ये क्वेश्चन आप अटक जाएंगे बीच में. तो आप इसको इस तरीके से आगे कर सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का. तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा. तो आशा करते हैं आपको हमारा चैनल पसंद आया होगा. अगर आप हमारा चैनल पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें. मैथ शिक्षा चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद.